Tetrahedral complex. The pattern of splitting of d orbital which is a key in the crystal field theory. तो crystal field theory में d orbital का splitting pattern होता है. Is dependent on the ligand pair environment. ये d orbital का splitting depend होता है ligand pair environment की वजह से. This illustrate for the tetrahedral ligand field environment. तो इसके लिए tetrahedral ligand pair environment illustrate करता है. Tetrahedral structure X, Y and Z. The tetrahedral structure having metal atom M at the center and 4 ligands occupying the corner of a tetrahedron display along with in figure 9.4. tetrahedral structure जिसमें metal atom रहता है सेंटर में, 4 लिगैंड जो है tetrahedron के कॉर्नर में ऑक्यूपाई करता है. तो यहाँ पर tetrahedral octahedral फ्री आयन. तो यहाँ पे पांचवा ऑर्बिटल जो रहता है स्प्लिट होता है T2G EG में. T2G में 3 ऑर्बिटल है तो EG में 2 होता है. तो यही फ्री आयन जो है स्प्लिट होता है टेट्राहेड्रल में. तो यहाँ पे EG और T2G रहता है. EG लो एनर्जी रहता है तो इसमें 2 ऑर्बिटल होता है. T2G में 3 ऑर्बिटल होता है और हाई एनर्जी रहता है. Try this. Sketch qualitative crystal field d orbital energy level diagram for each of the following complex. तो qualitative crystals field d orbital energy level diagram का sketch जो है बनाओ हर कॉम्प्लेक्स का. निकल 3 कीथलीन डायमीन निकल 2 प्लस 6 साइनो Mn 2 मैंगनीज 3 फिर हेक्सा फेरेट 2 complex. Predict whether each of the complex diamagnetic or paramagnetic. Predict करो कि ये complex diamagnetic है कि paramagnetic है. The dxy dyz dzx orbital with their loops lying between the axis point towards the ligand. तो dxy dyz dzx orbital जो है उनका लूप जो एक्सिस पॉइंट के बीचों बीच रहता है लिगैंड की तरफ. On the other hand, dx square y square dz square orbital lie between metal ligand bond axis. dx square y square dz square orbital metal ligand bond axis के बीच में होता है. The dxy dyz dzx orbital experience more repulsion from the ligand compared to the that by dx2y2 dz2 orbital. तो dxy dyz dzx orbital एक्सपीरियंस करता है ज़्यादा रिपल्शन लिगैंड से कंपेयर टू dx square y square dz square orbital से. Due to larger such repulsion, the dxy dyz dxz orbital जो are of high energy while the dx square y square dz square orbital are of near to low energy. तो ज़्यादा रिपल्शन होता है dx का dyz dzx ऑर्बिटल में. इसमें हाई एनर्जी रहता है. dx का y का dz का ऑर्बिटल रहता है लो एनर्जी रहता है. Each electron entering in one of the dxy dyz dzx orbital raise the energy by 4 eq, whereas that occupying dx का y square and dz square orbital lower it by 6 dq compared to the energy of hypothetical degenerate d orbital in the ligand field. हर इलेक्ट्रॉन जो है dxy dyz dzx ऑर्बिटल में एंटर करता है उसका एनर्जी 4q dq से बढ़ जाता है. तो यहाँ पे dx का y स्क्वायर dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो काफ़ी कम होता है 6 dq से. तो हाइपोथेटिकल डिजेनरेट होता है d ऑर्बिटल का ligand फील्ड में. For splitting of d orbital in tetrahedral crystal field assumed to be 10 dq, thus is much less
typical 4.9 compared to that for the octahedral environment. तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फिल्म में जो डी का स्प्लिटिंग जो है 10 डी क्यू रहता है, काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू 4.9 से octahedral environment से. The crystal field splitting of the orbital in a tetrahedral ligand field is compared with the octahedral one in figure 9.5. तो डी ऑर्बिटल का जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल लिगेंड में कंपेयर करेंगे ऑक्टाहेड्रल से. Thus, the pairing of electron is not favored in tetrahedral structure. तो इलेक्ट्रॉन जो है का जो पेयरिंग जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन D4 configuration an electron will occupy one of the T2 orbital. तो यहाँ पर D4 configuration जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है T2 ऑर्बिटल में होता है. तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दस आर नॉट फाउंड. तो इसे लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलता नहीं है. टिपिकली मेटल कॉम्प्लेक्स पोजीशन द सेंटर मेटल आयन विद द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. फॉर एग्जांपल निकल मतलब हेक्सा कार्बोमोनोक्सो हेक्सा कार्बोनाइल निकलेट फेवर द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंटर मेटल आयन में D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहता है जैसे कि NaCO4 मतलब टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है. एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन इन बायोलॉजी. सेवरल बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट नेचुरल कंपाउंड और मेटल कॉम्प्लेक्स. तो बायोलॉजी में बहुत सारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट नेचुरल कंपाउंड में मेटल कॉम्प्लेक्स होता है. दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन नंबर ऑफ प्रोसेस अकरिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और प्लांट्स और एनिमल में जितने भी प्रोसेस है उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैंगनीज. क्लोरोफिल जो प्रेजेंट रहता है प्लांट में उसमें मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स रहता है. हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन. हेमोग्लोबिन जो रहता है उसमें आयरन का कॉम्प्लेक्स रहता है और हेमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट रहता है. इन मेडिसिन प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लेट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स जो रहता है सिस्प्लेट यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में. ETT यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड पॉइजन. ETT to estimate hardness of water. Hardness of water is due to the presence of calcium 2 plus and magnesium 2 plus ion. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वाटर का हार्डनेस एस्टिमेट करने के लिए भी यूज़ होता है. सो वाटर का हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन प्रेजेंट होने की वजह से वाटर में हार्डनेस आता है. The ligand EDTA forms stable complex with calcium 2 plus and magnesium 2 plus. तो ये ligand EDTA जो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड है ligand है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ. इट कैन देयरफॉर बी यूज टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो इसीलिए इसको इथिलीन डायमीन को EDTA को अगर कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो वाटर का हार्डनेस को एस्टिमेट कर सकते. ये जान सकते कि वाटर में कितना कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन और कितना मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो गया. In electroplating, usually stable coordination complex on dissolution dissociate to small extent and furnish a controlled supply of metal ion. तो यहाँ पे coordination complex usually stable coordination complex on dissolution dissociate to what extent furnish a controlled supply of metal ions. तो यहाँ पर stable coordination complex फॉर्म होता है जब मेटल आयन का सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और डिसोसिएट होता है छोटे छोटे एक्सटेंट में तो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. द मेटल आयन व्हेन रिड्यूस क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म क्लस्टर और नैनो पार्टिकल. मेटल आयन जो है
रिड्यूस होता है क्लम्प में एक साथ ताकि क्लस्टर या फिर नैनो पार्टिकल फॉर्म हो सके. When the coordination complex are used, the ligand in the complex keep the metal ion as well as separated from each other. तो coordination complex जो है यूज होता है ligand के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स में ताकि मेटल आइटम और ligand को सेपरेट कर सके एक दूसरे से. This metal atom tend to form protective layer on the surface. ये metal atom जो है surface पर protective layer form करता है. Certain cyanide complex dicyano silver potassium complex and KAuCN2 dicyanoaurate potassium find application in the electroplating of the noble metals. तो मेटल आइटम जो है सरफेस में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है जैसे कि कुछ साइनाइड कॉम्प्लेक्स जैसे कि KAgCN2 KAuCN2. इसमें ये नोबल मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एप्लीकेशन के लिए काम आता है.